વાત કરે છે આપણે કીધું છે અમે 500 રૂપિયામાં બાટલો આપવાનો છે મોંઘવારી બધું આપણે આપવાના છે ખેડૂતોના બિલ માફ આપણે કરવાના છે 27 વર્ષ સુધી આપણે રાહ જોઈ છે ગુજરાતની પ્રજા પરેશાન થઈ છે બધા જ ખોટા વાયદાઓ આપીને આપણા ગુજરાતનું મોડેલ કરીને નરેન્દ્ર મોદીએ જે સ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે મોરબીનો બ્રિજ તૂટી ગયો હમણાંનું ઉદઘાટન કર્યું હજારો માણસો મરી જાય 200 લોકોના નાના બાળકોથી માંડીને આખું પરિવાર પાણીમાં સમાઈ જાય મોદીના પેટનું પાણી ના હાલે કમનસીબે બીજા દિવસે કાર્યક્રમ કરે એની હેટ પહેરે બીજા દિવસે મોરબી આવે મોરબીની હોસ્પિટલનું સમારકામ અને રોગાણ શરૂ થાય રંગ રોગાણ શરૂ થાય એક બાજુ લાશના ઢગલા હતા બીજી બાજુ રંગ નરેન્દ્ર મોદીએ જે સ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે મોરબીનો બ્રિજ તૂટી ગયો હમણાંનું ઉદઘાટન કર્યું હજારો માણસો મરી જાય 200 લોકોના નાના બાળકોથી માંડીને આખું પરિવાર પાણીમાં સમાઈ જાય મોદીના પેટનું પાણી ના હાલે કમનસીબે બીજા દિવસે કાર્યક્રમ કરે એની હેટ પહેરે બીજા દિવસે મોરબી આવે મોરબીની હોસ્પિટલનું સમારકામ અને રોગાણ શરૂ થાય રંગ રોગાણ શરૂ થાય એક બાજુ લાશના ઢગલા હતા બીજી બાજુ રંગ રોગાણ ને રોડ બનતા હતા લાશના ઢગલામાંથી 2 દીકરા દીકરીઓ ઉભા થઈને બહાર નીકળે છે જીવતા એની કોઈ ચિંતા કરતું નથી અને એવી સ્થિતિની અંદર જ્યારે એમનો કાર્યક્રમ પતી જાય બીજા દિવસે એ શોક વ્યક્ત કરાવે છે આપણે કોંગ્રેસે પહેલા જ દિવસે જેવા સમાચાર મળ્યા બધા જ પ્રોગ્રામો પોસ્ટપોન કરીને આપણા ચીફ મિનિસ્ટર રાજસ્થાનથી શરૂ કરી આપણા પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ બધા જ પહેલા દિવસે મોરબી પહોંચી ગયા બીજા દિવસે બધા જ લોકો ત્યાં હાજર હતા આપણી યાત્રા આપણે કેન્સલ કરી નાખી પરંતુ એમણે એમનો રાજકીય કાર્યક્રમ કેન્સલ નહોતો કર્યો માનવતા સંવેદના બધું જ ગુમાવી દીધું છે અને એટલા માટે ગુજરાતી તરીકે આપણે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે આપણા બધાની જવાબદારી છે આપણે આપણા ગુજરાતને બચાવવું છે હવે મોદી સીએમ નથી થવાના આપણને ખબર છે ભૂપાભાઈની સરકાર 108 ગુનાવાળા ભાવની સરકાર આપણને બધાને ખબર છે કે આવતીકાલ આપણે 108 ગુનાવાળાને સોંપી છે આવતીકાલની સરકાર આપણે જે તંત્ર આ ડબલ એન્જિન કે છે ને લોકો એમનું ગુજરાતનું એન્જિન બંધ થઈ ગયું છે બધો પ્રયત્ન ગુજરાતના એન્જિનને ચાલુ કરવા કરે છે હિન્દુ મુસલમાન કરાવે છે સમાન સિવિલ કોડના કાયદા લાવે છે અનેક પ્રયત્ન કરે છે પણ એ મશીન ઉપડતું નથી અને એટલા માટે આ બંધ પડેલું મશીન ચૂંટણી પછી આ એમનું દિલ્હી વાળું મશીન તો અહીંયા દેખાવાનું નથી પછી 24માં આવશે એમનું મશીન દિલ્હીમાં વાળું મશીન તો દેખાવાનું નથી આ 22ની ચૂંટણી સુધી દર દિવસે 3 વખત આવે છે આ મશીન ચાલુ કરવા માટે પણ આ ચાલુ થવાનું નથી અને આ બધા જ આવતીકાલ તમારા બધાવાનું છે તમારામાંથી કોઈ ડાયરેક્ટર હશે કોઈ ચેરમેન હશે કોઈ મંત્રી હશે અને એટલા માટે હવે આપણા બધાનો સમય આવી ગયો છે
તમારે ભેગા થઈને બાકી બધું જ બાજુમાં મૂકીને સત્તા જૂટવી લેવાની છે. તમારે સત્તા જૂટવવાની છે અને આ જવાબદારી તમને સોંપીને આપની વચ્ચે વધારે સમય નહીં લેતા હું દેવરાજ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે હવે આપણને સંબોધો. તમે બધા કેમ છો? मज़ामा? सबका भोजन का टाइम हुआ. मैं कम शब्दों में अपना भाषण समाप्त करूंगा. हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए लाखा भाई, हमारे पूर्व गुजरात के मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विमल भाई, बलवंत गाढ़वी जी जो इस डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे पंकज भाई जो आज हमें भोजन खिला रहे हैं, संजय भाई अमरानी, दिलीप पटेल जी, जीतू राकिया जी, गौतम रावल जी, नथुबा वाघेला जी, रमेश पटेल जी, मंच पर उपस्थित अन्य सज्जनों, माफ कीजिएगा यदि मैंने किसी का नाम नहीं लिया. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे मलबार हिल, नाम आपने सुना होगा, मलबार हिल के पूर्व विधायक की उम्मीदवार सूजीबेन शाह, मैंने उनको भी मेरे साथ लेकर आया हूं मुंबई से. हमारे दक्षिण मुंबई के एक नगर सेवक है जावेद भाई राठौड़, जावेद भाई जुनेजा, उनको भी मैंने मुंबई से हम लेकर आए हैं. और मैं एक बात सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि मुंबई जो देश की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है, मुंबई को देश की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी बनाने में मैं गर्व से बात कहना चाहता हूं कि हमारे गुजराती समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है, अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा. और कुछ समय पहले मैं विमल भाई को भी कह रहा था कि गुजराती लोग जो है बहुत हिंदी में उद्यमी, एंटरप्रेन्योरल, बहुत उद्यमी लोग होते हैं. और उद्यमी लोगों का मतलब है कि आपको सच्चाई और झूठ में क्या अंतर है वो आपको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी है. मुझे पूरा लंबा आपको पिछले 27 सालों में क्या झूठ बोला गया उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण उपस्थित है, आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है ये केवल गुजरात के भविष्य के लिए, गुजरात के नौजवानों के भविष्य के लिए, गुजरात की महिलाओं के भविष्य के लिए, गुजरात के वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है. ये पूरी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है. इस चुनाव में क्या होगा उसमें मुंबई में, दिल्ली में, पूरी देश में इसका नतीजा होगा. और पिछले 27 सालों में सरकार ने आपके लिए क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह की जानकारी है. लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि वे देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस समय जो गुजरात मॉडल का मार्केटिंग किया गया पूरे देश में, पूरी देश के नौजवानों को लगा कि गुजरात में एक भी नौजवान, एक भी युवक आपको नहीं मिलेगा जो बेरोजगार है, एक भी महिला नहीं दिखाई देगी जो महंगाई से परेशान है. लेकिन आज जब हम जीप पे रैली में थे, एक महिला ने हमारे हाथ पकड़ के कहा कि सरकार लाओ, जो जल्दी से सरकार लाइए और ये परिवर्तन लाइएगा और गैस सिलेंडर का जो दाम है, जो 1200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर, वो आप कम कीजिए. उसके पहले 2014 के समय भाजपा ने ऐसे एक वातावरण फैलाया कि गुजरात के जो किसान हैं बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है. लेकिन आज और खास करके कुछ दिन पहले मोरबी में जो पुल का हादसा हुआ, मैं सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोगों की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को मोक्ष मिले. लेकिन उस पुल के गिरने के बाद गुजरात का वास्तव में मॉडल क्या है वो पूरी देश को और पूरी दुनिया को मालूम पड़ा है कि ये जो संसाधन, महिला सुरक्षित है, यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार है, वो सच्चाई नहीं है. और दोस्तों, आज गुजरात में जिस प्रकार से अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल को दिल्ली में बेचा, आज कुछ नए लोग आकर गुजरात में दिल्ली का मॉडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं. मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का मॉडल, राहुल गांधी जी का मॉडल, इस मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का मॉडल, हमारे पास एक ही मॉडल है जो महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को मॉडल दिया, सत्य, स्वराज और अहिंसा. हमारा कांग्रेस पार्टी का मॉडल इन 3
सिद्धांतों पर आधारित है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर को सबसे पहले फेज पे चुनाव होगा, उसके बाद 5 दिसंबर, और इस चुनाव में गुजरात में 5 करोड़ मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे, वोट देंगे। आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, सच्चाई क्या है आपको अच्छी तरह से जानकारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिन हमारे पार्टी के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही संदेश आपको जनता तक, हर गांव तक, हर शहर तक और हर जिले तक, हर तालुका तक, हर वार्ड तक आपको पहुंचाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूं। आपसे मिलने का एक मुझे अवसर मिला है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन धरती पर मुझे बुलाया गया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता का बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति शांति।